गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सेकेंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में आज हम बात करेंगे कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नोबल्स। कंपनी के अधिकारी नवाब की तरह ट्रीट करने लगे अपने को। क्यों? बट बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक I would like to explain the previous condition. We have read that the Battle of Plassey, and after Battle of Plassey, what happened in Bengal? I think there is no need to explain because I have explained it in my previous video. That is very strange matter with Bengal, that it was more prosperous during 16th 17th century, but in 18th century what happened with Bengal? I think we know about that. Britishers settled him in Bengal. He made their factories, fortified factories, and that was the matter of the conflict between Nawab of Bengal and Britishers. And we also know about the concession which was given by the Nawab of Bengal and Mughal Emperor to East India Company. They misuses their farman, they misuses their nisan, and they taken it illegally. Matter is that the company officials became Nawab. My dear student, प्यारे बच्चों, यदि आप देखें समझें इन बातों को ध्यान से, तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ों पे बात की थी। हमने कहा था कि किस तरीके से बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद जो एक षड्यंत्रों का परिणाम था, कंस्पिरेसी थी, और वहाँ पे पपेट नवाब बैठा दिए गए। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम, फिर मीर कासिम की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ने लगी और फिर मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा दिया गया, और जल्दी ही मीर जाफ़र 1765 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर 1765 के आसपास ब्रिटिशर्स ये डिसाइड करते हैं कि अब वो खुद बंगाल की दीवानी संभालेंगे। उन्होंने ऐसा किया भी, बंगाल की दीवानी अपने हाथ में ले ली और व्यापारिक व्यवस्था को खुद चलाने लगे। हम लोगों ने इन चीज़ों पर विस्तार से बात की थी। आज हम उन बातों पे फोकस करेंगे जिन मुद्दों पे बंगाल के नवाब को प्रॉब्लम थी, और वास्तव में बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इन चीज़ों को रियलाइज़ किया, देखा क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी। यदि बात करें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की, तो हमें क्लियर इस बात की जानकारी मिलेगी कि जो निशान या जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो प्रिविलेजेस कंपनी को दिए गए थे, वो कंपनी प्रशासन के अधिकारियों, ऑफिशियल्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उन्होंने उसका मिसयूज किया। इट मीन्स द प्रिविलेजेस which was given by Mughal emperor or local king to East India Company for the trade, that official document was misuses by their officials. Their officials started the personal trade, and that was violation of the nisan, the farman which was they taken.
The officials, local officers of the East India Company treated himself as a company officials, and that's why the point is the company officials become nobles. If you'll see in your book, then it is clearly described that what did it means to be Nawab. It meant, of course, that the company acquired more power and authority, but it also meant something else each. Company servant began to have vision of living like Nawab. That is the main points of this topic. When company became powerful in Bengal, their officials felt that now that time they were like a Nawab. They were facilitate himself like a Nawab. नवाब की तरह वो अपने को ट्रीट करने लगे. हर वो प्रिविलेजेस जो नवाब को थे वो कंपनी के पावरफुल होने के बाद कंपनी के ऑफिशियल्स ने अपने लिए पर्सनल इंटरेस्ट पे यूज करना शुरू कर दिया. दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल were forced to give land and vast sums of money as personal gift to company officials. Robert Clive himself, amazed a fortune in India, he had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. When in the 1767 he left India, his Indian fortune was worth 401,102 pounds. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764 second time, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of the vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. I have already told you that story. That story gives us information about Robert Clive, who became the governor of Bengal. Robert Clive and their wealth, their condition, their status day by day increase. He claimed that in Bengal there were so many corruption, and second time when he reposted on the post of Governor General of Bengal, he decided that कि मैं बंगाल से करप्शन को दूर कर दूंगा. बट इट इज वेरी स्ट्रेंज एंड एस्टोनिश मैटर दैट वाज कि खुद रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने सफाई देनी पड़ी. उसके बढ़ते हुए धन, उसकी बढ़ती हुई प्रॉपर्टी इस बात को शो कर रही थी कहीं न कहीं वो खुद इस करप्शन में इन्वॉल्व था. 1743 में जब वो आया और फिर 1764 तक आते आते उसकी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ चुकी थी, और इस बात के लिए उसके ऊपर जो करप्शन का आरोप लगा 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उसको क्रॉस एग्जामिन, प्रेशर क्रिएट हुई, और शायद इसी प्रेशर के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया. देयर इज नो मीनिंग ऑफ सुसाइड. मीनिंग इज दैट कि भारत में आने के बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे
उनकी स्थिति, उनकी हैसियत बढ़ती कैसे जा रही थी, क्या प्रॉब्लम थे उसके पीछे, क्या रीजंस था उसके पीछे, और क्या वो वास्तव में भारत को लूट रहे थे, क्या वो कंपनी के लाभ के लिए कार्य कर रहे थे। दे वर वर्किंग इन इंडिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंपनी और फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिमसेल्फ, but the information which we got in contemporary documents, according to that we can clearly know that they were prosperous himself, not the company. That is the important. और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव, who was the governor general during that time, he was also cross examined in British Parliament. उससे क्वेश्चन पूछे गए कि भाई आप क्यों गए थे, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ गई, क्या रीजंस था इसके पीछे, और उन्हें इन चीज़ों के लिए जवाब देना पड़ा। हाउएवर, नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीडेड इन द मेकिंग मनी लाइक क्लाइव. Many died an early death in India due to disease and war, and would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. Many of them came from the humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, and lend to comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called Nawab, an anglicised version of the Indian word Nawab. They were often seen as upstart and social climbers in British society, and were radical or made fun of the play and cartoons. आज सबसे बड़ी समस्या थी उनके सामने। अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें वहाँ से आए हुए लोगों की हिस्ट्री पे, आई मीन टू से दैट इफ यू माइन्यूटली ऑब्जर्व अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल्स, they were belongs to simple and middle class family, but they appointed here as a company's officials. They decided कि अब तो किसी भी तरीके से हमें नवाब बनना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूल करने हैं, भारत को लूटना है। और इस तरह से उसने भारत को अपने जागीर समझ की, इट मीन्स अपनी प्रॉपर्टी समझ के उन्होंने लूटना शुरू किया। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरफ दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए, जल्दी मर गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऑप्शंस ने अच्छे कार्य किए। इट मीन्स बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडिया में काफ़ी अच्छे कार्य किए। उनमें सब एक कॉमन चीज़ थी, सब चाहते थे कि वो भारत में खूब पैसा कमाएं, ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी जिए। जो जीते जी इतना पैसे लेके यहाँ से जाएं कि ब्रिटेन में एक वेल्दियर पीपुल के, प्रॉस्परस पीपुल के रूप में रहें। इवन ब्रिटेन में ऐसे लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लोग उनकी आलोचना करते थे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपने को समृद्ध करके, इट मीन्स प्रॉस्परस करके जाना चाहते थे, इंडिया को लूट के जाना चाहते थे। यहाँ एक वर्ड है नवाब, इसको समझिए। नवाब किसे कहते थे? ये भारतीय शब्द नवाब की ही अंग्रेजी संस्करण से बन गया।
उन लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात वृद्धि हो जाती थी, रातों रात ही समाज के ऊपरी स्टेटस में पहुंच जाते थे और खूब इनका मजाक उड़ाया गया। ब्रिटिश कार्टूनों में, ब्रिटिश कहानियों में इनकी बड़ी आलोचना की गई। लेकिन अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो ऐसी आलोचनाओं से क्या मतलब, जब भारत को पूरी तरीके से लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया। कंपनी प्रशासन तो भारत को अपने हित के लिए लूट रही थी, साथ ही साथ ये अफसर भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करप्ट होते जा रहे थे, लाभ कमाने के लिए। इसका पूरा प्रभाव भारतीय इकोनॉमी पर पड़ा, इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा। बंगाल की इकोनॉमी पूरी तरीके से धराशायी होने लगी। बंगाल के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में वी विल रीड, हम देखेंगे इस चैप्टर में। अब हमें डिस्कस करना है कंपनी रूल्स एक्सपेंड। इट मीन्स कंपनी का प्रशासन कैसे फैलता चला गया। कंपनी अभी तक केवल दीवाने का काम कर रही थी, अब कंपनी सभी अधिकार अपने हाथों में लेना चाह रही थी। सो लेट्स स्टार्ट टू नेक्स्ट टॉपिक, कंपनी रूल एक्सपेंड्स। If we analyze the process of annexation of Indian state, by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on unknown territory. Instead, it used the variety of political, economic, and the diplomatic methods to extend its influence before annexity and Indian kingdom. प्यारे बच्चों, dear student, we have read about subsidiary alliance, where we read that Lord Wellesley started a political policy, that was a very clever step taken by Governor General of Wellesley, subsidiary alliance, in which he established a resident system. रेजिडेंट है पावर कि वो देश को, राज्य को कैसे चलाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि रेजिडेंट कौन थे। रेजिडेंट सब्सिडी अलायंस के थ्रू बैठाए गए अंग्रेजों के वो एजेंट थे जो राज्य के आंतरिक मामलों में आंतरिक सुरक्षा को देखते थे। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी आल्सो। बिना रेजिडेंट की मदद के अब स्टेट, जो लोग सब्सिडी अलायंस में सिग्नेचर कर देते थे, उनको किसी भी दूसरे राज्य से संधि करना, किसी दूसरे राज्य पे अटैक करना का अधिकार खो देते थे। वो अपनी सेना को भी विघटित कर देते थे। इट मीन्स अपनी सेना, उनकी सुरक्षा का कार्यभार अब रेजिडेंट के ऊपर आ जाता था। कितनी चालाकी से इनके खर्चों की व्यवस्था उस सरकार को करनी पड़ती थी। इट मीन्स सारा काम सिक्योरिटी का, प्रोटेक्शन का, एडमिनिस्ट्रेशन का रेजिडेंट देखेगा। रेजिडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट होगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस रेजिडेंट के खर्चे को देने का काम कौन करेगा? उस स्टेट की ट्रेजरी, राज्य के खजाने पे उनका वेतन व्यय रहेगा। इट मीन्स क्लियर है बेटा कि पैसा आपका और बाहर का व्यक्ति आपके आदेश में आके राज कर रहा है और आप बिना उसकी मर्जी के अपने राज्य में कुछ नहीं कर सकते। ये काम कर रही थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स. They were politically or the commercial agent, and their job was to serve and further the interest of the company through the resident. The company official began to interfering in the internal affairs of Indian state. They tried to decide who was to be
successor to throne and who was to be appointed in the administrative post. Sometime the company forced the state into subsidiary alliance. According to the terms of the alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that company was supposed of maintain for the purpose of this protection. If the Indian ruler failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. For example, Richard Wellesley was Governor General 1798 to 1805. Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. Hyderabad was also forced to get territory to similar grounds. It means कि सब्सिडी अलायंस के थ्रू यहाँ के लोगों को पूरी तरीके से मजबूर कर दिया जाता था इकोनॉमी पे, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स पे, पॉलिटिक्स पे पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर लिया। आप प्रेसिडेंट के पावर देखिए, इस पर हमने चर्चा की, विच वी डिस्कस्ड। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स अस क्लियर मैसेज about the policy of the Britishers, that how can they rule on India। बहुत चालाकी से उन्होंने भारत पे राज करने की व्यवस्था कर ली। धीरे धीरे उन्होंने अपने सिस्टम की व्यवस्था बढ़ाई और बढ़ाते बढ़ाते वो यहाँ तक पहुँच गए। एक एक स्टेप चला उन्होंने। अब हम बात करते हैं बंगाल के बाद मैसूर की। मैसूर साउथ इंडिया का वो रियासत जो कभी अत्यंत समृद्ध था। आई थिंक प्यारे बच्चों, यू हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट एम्पायर ऑफ द विजयनगर। विजयनगर एम्पायर की बात के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा इन योर प्रीवियस क्लास। कृष्णदेवराय वॉज इमिनेंट रूलर इन विजयनगर। ही वॉज पावरफुल रूलर। Vijayanagar and the Krishnadevaya was explained by Babur as a powerful ruler of India। बाबर ने इनको भारत के शक्तिशाली सम्राटों में से एक गिना था। लेकिन विजयनगर की डिक्लाइन और अंतिम राजवंश वडियार वंश, और वडियार वंश के बाद विजयनगर में हमें एक नए स्वरूप में दिखाई देता है और वो मैसूर रियासत के रूप में दिखाई देती है। मैसूर किस तरीके से आगे बढ़ा, मैसूर की क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे उसके डेवलपमेंट हुई, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। बंगाल के बारे में हमने बात किया, मैसूर पे बात करना ज़रूरी आवश्यक इसलिए भी है कि जब तक आप मैसूर को समझेंगे नहीं, आप नहीं समझ सकते कि किस तरीके से उन्होंने नॉर्थ और साउथ इंडिया के सभी क्षेत्रों को बड़ी चतुराई के साथ ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। मैसूर का इतिहास शुरू होता है हैदर अली से, बट यह द पॉइंट टॉपिक टीपू सुल्तान। बट आई वुड लाइक टू inform you about the other information about Mysore. Before start Tipu Sultan, you have to know about that their father Hyder Ali, who was founder of the Mysore state की स्थापना हैदर अली ने की 1722। Hyder Ali was born in the very common family. His father Fateh Muhammad was a very little official in the court of Mysore.
Gradually, we have seen the condition of Hyder Ali was changed on the behalf of their eligibility. We have seen that very soon he appointed as a डिंडीगुल फोर्ट किले में किलेदार फौजदार अपॉइंट कर दिया गया वो, और यहीं से उसकी विकास की कहानी चलती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात हैदर अली के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हैदर अली साउथ में एकमात्र ऐसा शासक था जिससे अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा, हारना पड़ा। मैसूर, आंग्ल मैसूर वार पे अगर हम बात करेंगे तो हमें वहाँ मिलेगा कि किस तरीके से हैदर अली ने फर्स्ट आंग्ल मैसूर वार में उन्हें पराजित किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात दी। लेकिन आफ्टर ऑल मैसूर वाज conquered by the British East India Company. There were 4 Anglo-Mysore War. In last Anglo-Mysore War, Tipu Sultan was कैप्चर्ड और उसको मार दिया गया, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पे 1799, और यहाँ से मैसूर का पतन दिखाई देता है। लेकिन आपको भी टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना है। हम बात करेंगे द टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान। क्यों कहते थे टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को? इन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन when it saw a threat of its political or economic interest. This can be illustrated with the case of southern India state of Mysore. Mysore had grown in the strength over the land leadership of powerful ruler like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased the pepper and the cardamom. In 1785, the Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper, cardamom through the port of his kingdom, and disallowed local merchants from trading with the company. He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. Tipu Sultan was interested to modernize their state. He became the member of Jacobin Club and he was highly influenced of the French Revolution. The British were furious. They saw Hyder Ali and Tipu as ambitious, arrogant, and dangerous for them. So he wanted to control and crush. 4 wars, which I explained, were fought with Mysore 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92, and 1799. Only in the last, the Battle of Srirangpatnam, did the company ultimately win the victory. Tipu Sultan was killed defending his capital Srirangpatnam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars,
and the subsidiary alliance was imposed on the state. That is the story of मैसूर. इस स्टोरी में हमने मैसूर की पूरी कहानी देखी, किस तरीके से, क्यों अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लाभ के लिए मैसूर को ख़त्म कर दिया. हमने ये भी पढ़ा, वी हैव रीड अबाउट दैट द स्टेप विच वॉज टेकन बाय टीपू सुल्तान टू अपोज द पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. टीपू सुल्तान ने अपने उन नियमों को इम्पोज किया, अपने यहाँ के व्यापारियों को अंग्रेज़ों से व्यापार करने पर रोक लगा दी. अपने क्षेत्र से जाने वाले सैंडल, वुड, इट मीन्स एक सुगंधित लकड़ी, चंदन की लकड़ी के व्यापार पे रोक लगा दी. मसालों पे रोक, दालचीनी पे रोक, अंग्रेज़ों के साथ व्यापार नहीं कर सकते, उनके जहाज़ों को भी अंदर आने से रोका. ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को प्रभावित कर रही थी. और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ या उनके इनकम को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही थी. सो दैट्स वाई डिसाइडेड एंड दैट्स वाई ईस्ट इंडिया कंपनी fought against the Mysore. There were 4 wars. Anglo-Mysore War first, Anglo-Mysore War first, that was happened in 1767 to 69. Anglo-Mysore War second, that was fought in 1780 to 84, and third Anglo-Mysore War 1790 to 92, and last 1799, that was the fourth Anglo-Mysore War, and that's result Tipu was killed on the front of their fort Srirangapatnam, that was their capital, and subsidiary alliance imposed on their state. लगा दिया गया और मैसूर को भी उन्होंने बड़े आसानी से उसको अपने राज्य में मिला लिया. आज हम मैसूर तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अन्य चीज़ों पे, मराठाओं पे. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.